Your college is called Peck University. What is the full form of PEC Peck? What's the difference between a census town and a municipal town or a statutory town? What is GI tag and how many GI tags are there in Bihar? मुझे ये बताइए कि एक ओपन साइकिल पावर प्लांट और क्लोज साइकिल पावर प्लांट में क्या अंतर होता है? Come in. Good evening, sir. Good evening. Have your seat, Alok. Thank you, sir. Your preferred medium is English or Hindi? Sir, bilingual, sir. Bilingual. Yes, sir. Introduce yourself. Sir, I'm from Patna. My schooling has been done in Patna only. Then, sir, I've done my graduation from Peck University of Technology, Chandigarh, and I've graduated in 2014. And from then onwards, I've started preparing for civil services. And sir, I've done my graduation in electrical engineering. And sir, after that in civil services, I chose my optional as public administration. And sir, my hobby is watching cricket. So all your choices are ranging 2-3 questions. Yes. One, that you graduated in 2014 with electrical engineering. Yes, sir. For last 9 years, what are you doing? Why didn't you go in your core area of engineering? Yes, sir. And second question is that why not electrical engineering? Sir, while I was studying in my graduation, sir, I came across public administration as an elective subject. Sir, then there only I started liking the subject, and then I thought about, sir, pursuing civil services because of that subject, and then I got interested in that subject and then civil services, sir. But I suppose that when you passed your 12th, Yes, sir. your first love was engineering. Yes, sir. Actually, that time, sir, I did not have much of exposure regarding, sir, civil services. So still, without Because- exposure, your first love was engineering. Yes, You sir. divorced engineering, Yes, sir. remarried with a new subject, Yes, public administration. yes, sir. That shows what kind of attitude? Sir, that shows, sir, that I'm open to, sir, anything new and anything which I'm ready to learn and pursue forward. Okay. Yes, sir. And that you initially wanted to become a successful engineer, Yes, sir. Initially, yes, sir. but you divorced your dream also, and you picked up a new dream to become administrator. Sir, to be honest, sir, it was not my dream, sir. Basically, sir, as I told earlier, sir, I did not have much exposure, so I had only two options at that time, either engineering or a medical field. And since my background and father, my brothers all were engineers, so I chose engineering. And no one was from civil services from my family or a background, and I did not have much exposure to that. So I did not thought about any career Okay. about civil Okay, services. fine, I got your point. Your college is called Peck University. What is the full form of PEC Peck? So it was formerly known as Punjab Engineering College. Okay. Then its name got changed from PEC to Peck University of Technology. Okay, when it was granted the status of university? Sorry, sir, not able to recall. You didn't try to know Sir- about your college? Sir, actually, sir, sir, it was about sir around 2007 or 8, because sir in 2007 or 8, sir, it got detached from Punjab University, because earlier it was under Punjab University. Then after when it got detached, it became university. Okay, so you lived 4-5 years in Chandigarh, Yes, which is a well-planned city, Yes, and city life, civic life is quite organized there. yes, sir. Now you want to become administrator, and once selected, you can be posted anywhere in a small town, sub-regional town, where life would be not as good as you have experienced in Chandigarh. Would you be comfortable working in the small towns of Bihar? Yes, sir. Sir, because sir, I've lived in Patna since my childhood, so it is also not that big city. It is also a small city only, and sir, so I'm aware of the fact that the city, what are the problems of small towns and cities, sir. Okay. Which are the important towns of Bihar? That is, how many towns are there? First of all, tell us. Sir, there are 4,041 towns, sir. 4,041 Since- towns yes, in sir. Bihar. Sir, sorry, sir, it is all over India, sir. All over Since- India. Yes, sir. How many are there in Bihar? Sir, there are 101 sir subdivisions, and sir, towns I'm not able to. Of course, 101 sub-regional towns are there, but Yes, there sir. are many block towns, district headquarters are of towns, commissionary headquarters. How many commissionaries or divisions are there in Bihar? Sorry, sir, I'm not able to recall. You are a student of public administration and you Yes, sir. want to serve in administration. Yes, sir. So at least administrative classification of Bihar, territory of Bihar.
Yes, sir. I've read, sir, but I'm not able to recall, sir. Divisions, Sir, 101 divisions. subdivisions, Subdivisions. Districts? Divisions, there are 9 divisions, sir. 9 divisions. Yes, That's sir. correct. Districts? Sir, 38 districts. What's the difference between a census town and a municipal town or a statutory town? Sir, census towns, sir, sir, there are 3 major criteria for defining a town as a census town. So one is the population. Sir, it should have population of more than 5,000. That's correct. And sir, the other is density. And sir, the other What is, should be density? sir, I'm not able to recall, but I think, sir, it is 400 That's around. close. Yes, sir. And sir, the third is that 75% male population should be engaged in non-agricultural Male activities. population or population? Sir, as far as I can recall, sir, it's male population, sir. Okay. And entire female population? If let's say entire female population is engaged in non-agriculture sector? Sir, then, sir, it depends on, sir, male only. The criteria has been defined as male only. So this definition is highly patriarchal. Sir, because, sir, it was defined way back in, sir, 1950. So that is why, sir, I think that is the criteria. What are the good qualities of an administrator? Sir, it should be visionary, sir. He should be visionary. He or she should be visionary. Okay. And he should be a decision maker, a fast and good decision maker. And sir, he should have a good communication skill. And sir, he should take along everyone with people, sir, and with the team, sir, in the organization. Okay. Thank you, Alok. Alok ji, Yes. what are the challenges faced by the parliamentary form of government? Ma'am, in parliamentary form of government, sir, there is a council of ministers. Ma'am, during in council of ministers, there is a consensus-based decision making, which sometimes is said that it makes the decision making process a bit slow. Okay. And ma'am, there is also a coalition government sometimes in parliamentary form of government, and the decision making is a bit political sometimes. Okay. आप मुझे बिहार के किन्हीं 5 कल्चरल सिंबल्स के बारे में बता सकते हैं? Any 5 cultural symbols of Bihar? Ma'am, first is Madhubani painting. Okay. And ma'am, second is regarding cuisine, litti chokha. And ma'am, third is Golghar, that is a symbol of Bihar. And fourth, ma'am, Buddhism, related to Buddhism, Bodh Gaya is very important cultural sites. And ma'am, fifth is regarding the Champaran Satyagraha. Okay. What is GI tag and how many GI tags are there in Bihar? Ma'am, there are many GI tags, and few of them are Jardalu mango, Shahi Lychee, Katarni Chawal. These Okay. are, yes. You have heard about the short movie Champaran Mutton? I know about Champaran mutton, but I have not seen the movie. Okay. How many tourism circuits are there in Bihar? And there are 9 tourism circuits. Can you tell me the name of all these 9 circuits? Ma'am, there is Shakti Ramayan's circuit, there is Shakti circuit, there is Buddhism circuit, then there is village circuit, and ma'am, these are 4 I can recall right now. Okay. What is inflation? Ma'am, inflation is the general rise in price level of a commodity during a particular year. Okay. And what is disinflation? Ma'am, disinflation is the rate of growth of inflation is negative. What is deflation? Ma'am, when the price goes into negative. Ma'am, the rate, regarding the rate is, ma'am, the definition. And what is regarding the rate. reflation? Sorry, ma'am. Reflation. Sorry, ma'am, I'm not able to recall. अच्छा ठीक है. ये बताइए कि जो कास्ट सर्वे हुआ अभी Yes, ma'am. बिहार में उसका आउटकम क्या है? What is the outcome? Ma'am, one important outcome is that the OBC category, regarding OBC category, it is said that as per the caste census, their population is around 63%, but the reservation they are getting is only around 36%, which is a bit, means there is anomaly in that. So people are saying that the reservation should be based on the population so that they can get their due right. अच्छा, सेंटर और स्टेट पे इसको लेके क्यों है इतना कॉन्फ्लिक्ट क्यों है? स्टेट कराना चाह रहा है, सेंटर्स के अगेंस्ट में है, और आप किसके फेवर में हैं? Ma'am, it is a political decision basically. They are free to do the census. But regarding that, why there is a tension between them? Actually, the
census is basically a union list subject. So some are saying that in the garb of survey, they have conducted a census, which is a union list subject. So it is not right, basically. Okay. Can you tell me the name of some famous business persons from Bihar? Ma'am, one is Anil Agrawal, who is the chairman of Vedanta. Good. And ma'am, the other person is, I'm not able to recall his name, but regarding security management, he has created a security group. Yes. अच्छा, you have heard about the Statue of Oneness? Sorry, ma'am. नहीं सुना है? Statue of Unity? Yes, ma'am. क्या है? Ma'am, it is a statue in Gujarat. It is a statue of Sardar Vallabhbhai Patel. And what is the height of this statue? Sorry, ma'am, I'm not able to. Okay, thank you, sir. आलोक, आपका वैकल्पिक विषय पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। Yes, sir. मुझे ये बताइए कि ग्लोकल से क्या समझते हैं? ग्लोकल yes, sir. सर ग्लोकल का मतलब है सर जो ग्लोबल लेवल पे जो भी चीज़ें हैं वो लोकल लेवल पे उसको लाने की कोशिश की जा रही है, जैसे थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन। बेसिकली ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के रिगार्डिंग अच्छा की जाती है। क्या इसका विपरीत भी कर सकते हैं कि लोकल लेवल पे जो चीज़ सक्सेसफुल है उसको ग्लोबली हम अप्लाई करें? ये सर कर सकते हैं सर। कोई उदाहरण दे सकते हैं आप? रिगार्डिंग सर जैसे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन में सर हम जैसे कई ट्राइबल्स है वो एक लोकल एरिया में सर प्रोटेक्ट करते हैं किसी फॉरेस्ट एरिया को, वो हम ग्लोबल लेवल पे उसको लेके जा सकते हैं। अच्छा, ओपीएस और एनपीएस को लेकर बहुत विवाद है। यस। तो आपका क्या मत है कि कौन सा बेहतर है देश के लिए, कौन सा बेहतर है कर्मचारी के लिए? सर कर्मचारी के लिए तो ओल्ड पेंशन स्कीम बेटर है, बिकॉज सर उनको कंट्रीब्यूशन नहीं करना पड़ेगा, उन पर फाइनेंशियल बर्डन नहीं पड़ेगा। और सर अगर उसके विपरीत देखें तो सर अगर न्यू पेंशन स्कीम हम जो लेके आए हैं सर उसमें गवर्नमेंट को ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, बिकॉज तो गवर्नमेंट को एनपीएस से फ़ायदा है, एम्प्लॉयज़ को ओपीएस से फ़ायदा है। यस सर। देश को किससे फ़ायदा है? सर कहीं ना कहीं सर इसका आंसर सर मिडिल पाथ पे ही आता है, क्योंकि सर अगर हम थोड़ा रेट कम कर दे, मतलब अभी तो जैसे 50% मिल रहा है सर लास्ट ड्रॉन सैलरी पे, अगर उसको लो कर दे 20-25% पे और बाकी कंट्रीब्यूटरी कर दे तो एक ये अच्छा मिडिल ग्राउंड निकालना चाहिए। ठीक है। आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी हैं, मुझे ये बताइए कि एक ओपन साइकिल पावर प्लांट और क्लोज साइकिल पावर प्लांट में क्या अंतर होता है? सॉरी सर इसके बारे में। अच्छा, प्लांट लोड फैक्टर क्या होता है? सर प्लांट लोड फैक्टर सर कैपेसिटी होती है किसी भी प्लांट की जिस पे वो वर्क करता है। कितनी हो सकती है मैक्सिमम? सॉरी सर। ये बताइए कि बिहार में ऑपरेशन प्रहार किस चीज़ के लिए किया गया है? सर ये लिकर के रिगार्डिंग किया गया है, लिकर बैन को बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए। आपको क्या लगता है किसी भी चीज़ को के लिए बैन ज़्यादा बेहतर है या फिर उसका रेगुलेशन ज़्यादा बेहतर विकल्प है? सर आई थिंक रेगुलेशन ज़्यादा बेटर है सर। तो फिर क्यों बिहार सरकार लगातार, और बहुत ही कड़ा बैन है ये तो? ये सर है बिकॉज सर कहीं ना कहीं सर ज़रूरी भी है ताकि लोगों में एक डेटरेंस भी हो। आपको क्या लगता है कि जो जहरीली शराब वाली घटनाएं हो रही हैं इसके पीछे कहीं ना कहीं ये लीकर बैन भी कुछ ना कुछ इसकी भी जवाबदेही बनती है? ये सर लीकर बैन की वजह से सर जो लीकर की सर प्रोडक्शन है या डिस्ट्रीब्यूशन है वो सर ब्लैक मार्केटिंग के थ्रू हो रही है। सर इसके रिगार्डिंग सर गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए भी है क्योंकि उनको पता है कि ये सब हो रही है। तो इसके रिगार्डिंग सर जैसे अभी सर आपने बोला ऑपरेशन प्रहार इम्प्लीमेंट हो रही है और ड्रोन के थ्रू कई जगह पे सर रेड भी की जा रही है, सो दैट कि जहाँ भी प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ पे कम उस पर रोक लगाया जा सके। अच्छा, और इसमें सर हाँ बताइए सर इसमें कई यूथ को भी और पीपल को भी इन्वॉल्व किया गया, वो जाके खुद भी सर रेड तो नहीं करते बट जाके मॉनिटर करते हैं और फिर वो इन्फॉर्म करते हैं पुलिस को या एडमिनिस्ट्रेशन को। अच्छा, आपको क्रिकेट भी पसंद है? यस। मुझे ये बताइए कि क्रिकेट मैच में कितने एम्पायर होते हैं और सभी की भूमिका बताइए। सर टोटल सर 4 अंपायर होते हैं सर, 2 ग्राउंड पे होते हैं सर और एक थर्ड अंपायर होते हैं जो टीवी पे बैठे होते हैं और सर एक 4th अंपायर इन रिजर्व में होते हैं। उनकी क्या भूमिका होती है मैच में? सर अगर जो ग्राउंड पे अंपायर से अगर उनको कुछ हो जाए बाय चांस तो उनको एज ए सब्स्टिट्यूट। यस। कोई वैसा रोल नहीं होता मैच में? सर मैच में सर अगर गेंद खराब हो जाएगी तो क्या होगा? होता है कई बार बॉल सर वो हाँ वो सर ला के देते हैं सर उनको। धन्यवाद सर। आलोक, मणिपुर में जो हो रहा है उसको प्रशासकीय नज़रिए से क्या कहा जाए? प्रशासन की विफलता मानी जाए ना मानी जाए? ये सर एडमिनिस्ट्रेशन की फेलियर इसको बोल सकते हैं सर, बिकॉज सर एक तो इंटेलिजेंस में भी एक सर थोड़ा सा फेलियर रहा है, बिकॉज ये घटनाएं जो होती है सर बेसिकली ये ओवर द ईयर्स चल रही होती है,
जो लास्ट में जाके ये मतलब ये जाके होती है सर, बाद में वायलेंस का रूप क्या लेती है। इसको आप कह सकते हैं कि संवैधानिक प्रक्रम कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई है वहाँ? सर एक पर्टिकुलर एरिया में कह सकते हैं, बिकॉज सर अभी हम देख रहे हैं कि वायलेंस इतनी ज़्यादा हो गई है कि पॉलिटिकल लीडर्स या गवर्नमेंट के ऊपर अटैक हो रहे हैं। तो अगर उनको अगर सर थोड़ा रोकना है तो सेंट्रल इंटरवेंशन थोड़ा अभी चाहिए सर। अनुच्छेद 352 का उपयोग होना चाहिए अब। सर अभी उस स्थिति में अभी नहीं आई है, बिकॉज सर अभी जो सेंट्रल फोर्सेस वहाँ पे डिप्लॉय किए गए हैं सर, उन्होंने काफ़ी हद तक सर कंट्रोल कर लिया है वायलेंस को। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी तेज़ी से घटनाक्रम में परिवर्तन हुआ है। अभी आर्मीनिया ने एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था ज्वाइन कर ली है। कौन सी संस्था है जो कि बड़ी इम्पोर्टेंट मानी जा रही है? सर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को ज्वाइन कर लिया है, आईसीसी को। सॉरी सर, मैं अवेयर नहीं हूँ सर इससे। आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच में जो तकरार चल रहा है उससे sir. अवेयर तो होंगे? यस सर कुछ साल पहले चल रहा था, उस टाइम सर अवेयर था मैं सर। अभी फिलहाल रिसेंट अच्छा, टाइम्स में पिछले एक हफ्ते में जो घटनाएं हो रही हैं नो सर, सॉरी उस पर सर, ध्यान नहीं दिया है। नो सर। ठीक है। आपका क्या मानना है कि यूक्रेन में जो घटनाएं पिछले एक साल से या उससे भी ज़्यादा समय से चल रही हैं उसमें सुरक्षा परिषद को जो कार्रवाई करनी चाहिए थी वो कार्रवाई करने में वो फेल हुआ नहीं हुआ? सर कुछ हद तक सुरक्षा सर, परिषद का मुख्य मैंडेट तो यही है, विश्व में शांति कायम करना, यस सर, युद्ध के बदले डिप्लोमेसी से चीज़ों का समाधान निकालना। यस सर, वो तो नहीं कर पाया। यस सर, कुछ हद तक सर इनको फेलियर कहा जा सकता है, बिकॉज सर जो यूएनएससी है सर वो बेसिकली डोमिनेटेड है सर डेवलप्ड कंट्रीज सर, जैसे यूएस हो गए या फिर जापान वगैरह, इन सबसे डोमिनेटेड है। वो डेमोक्रेटाइज नहीं है सर वो इंस्टीट्यूशन यूएनएससी। तो सर इसके लिए सॉल्यूशन यही है कि इनको थोड़ा और डेमोक्रेटाइज किया जा सके, सो दैट प्रेशर अगर आगे ऐसी कोई घटना होती है तो यूएनएससी पे प्रेशर बने और सर और ज़्यादा अच्छे तरीके से स्टेप लिया क्या जा सके। यूएन सुरक्षा परिषद की विफलता का यह भी कारण है कि उसके जो अस्थायी सदस्य हैं Yes, sir. उसमें से ज़्यादातर नाटो में ज़्यादा सक्रिय हैं, उसमें वो अपना रिसोर्स ज़्यादा यूज़ करते हैं? Yes, sir. अस्थायी सदस्यों में से कितने नाटो के सदस्य भी हैं? सर 3 है सर। ठीक है। Yes, sir. कौन कौन से? सर यूएस है, फ्रांस है एंड सर जर्मनी। जर्मनी सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है? सॉरी सर, यूके है? यूके, सॉरी, यस सर, सॉरी। तो ये तीनों देश नाटो में अपनी शक्ति ज़्यादा लगा रहे हैं, यस सर, सुरक्षा परिषद में संशोधन या रिफॉर्म करने की उनकी मंशा नहीं है। यस सर, यस सर, मतलब सर एक ग्लोबल हेजिमनी करके सर एक टर्म होता है सर, उसमें सर वो लोग अपना ग्लोबल हेजिमनी सर रखना चाहते हैं, खासकर यूएस, बिकॉज राइजिंग चाइना की वजह से, कि चाइना जिस तरीके से ग्रो कर रही है और असर्टिव हो रही है ग्लोबल लेवल पे, चाइना चाह रही सर, यूएस चाह रही है कि सर अपना उनका हेजिमनी बना रहे। या ये कहा जाए कि सुरक्षा परिषद को डेलिबरेटली चाइना और रशिया ने डिफंक्ट बना दिया है अपने वीटो पावर का मिसयूज करके? ये सर कुछ हद तक कह सकते हैं, क्योंकि सर चाइना भी काफ़ी टाइम से सर वीटो कर रही है अगेंस्ट इंडियाज इंक्लूजन इन यूएनएससी। तो आपको लगता है कि एक रिफॉर्म ये भी होना चाहिए कि ये वीटो पावर वाले प्रिंसिपल ही ड्रॉप कर दिया जाए? हाँ सर, ड्रॉप करना ठीक नहीं रहेगा, बिकॉज कई बार होता है कि कोल्यूजन करके सर कई बार गलत स्टेप लिए जा सकते हैं। तो सर एक वीटो पावर रहना चाहिए, बट हाँ डेमोक्रेटाइज कर सकते हैं सर इस चीज़ को सर। अभी जैसे सिर्फ 5 ही कंट्रीज़ है और वो भी सिर्फ नॉर्दर्न कंट्रीज़ है, सदर्न कंट्रीज़ का कोई, जैसे अफ्रीका के कई कंट्रीज़ नहीं है सर यूएनएससी में, या ग्लोबल साउथ के जो भी कंट्रीज़ है, ब्राज़ील हो गया या फिर जर्मनी हो गया सर, ये सब कंट्रीज़ नहीं है, इनको इंक्लूजन करना चाहिए ताकि डिसीजन मेकिंग और बेटर। ठीक है, मेरा अंतिम प्रश्न है आलोक, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? सर श्री कृष्ण सिन्हा। उनकी 3 बड़ी उपलब्धियां बता सकते हैं? 2? हाँ सर, उन्होंने सर इंस्टीट्यूशंस बनाए थे सर, कई एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बताएं नाम। सर जो रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ करती थी उनको एनआईटी पटना में सर कन्वर्ट किया था। कृष्ण सिंह ने एनआईटी बना दिया था सर, उन्होंने मतलब रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ करते थे सर। आरईसी को एनआईटी कब बनाया गया? सर 1950s में आई थिंक बनाया गया था, उसी वक्त एनआईटी बना दिया गया था। हाँ सर, जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ। ओके, ठीक है। दूसरा? सर उन्होंने सर एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दी थी सर बिहार को। ठीक है। क्योंकि सर उसके बाद अगर देखा जाए तो सर वहाँ बहुत कम ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने अपना पॉलिटिकल टर्म पूरा किया। तीसरा? तीसरा सर, उनके प्रशासन का कोई फेलियर था या हर तरीके से वो सफल प्रशासन था? उनके नेतृत्व में जो प्रशासन था, यस सर, इट वाज कंप्लीट सक्सेसफुली एक्सपीरियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, देयर वर सम फेलियर्स? सर
कुछ स्कॉलर्स ऐसा कहते हैं सर कि उन्होंने सोशल इंक्लूजन पे उतना फोकस नहीं दिया था। बाद में श्री कर्पूरी ठाकुर ने सर उन्होंने सर थोड़ा पॉइंट टेकन ये था सर, अभी इतना ही पॉइंट। चलिए, नाइस टॉकिंग टू यू आलोक, योर इंटरव्यू इज ओवर, यू मे गो नाउ। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। आ जाइए, बैठिए आलोक। तो हम तो अपना असेसमेंट बताएंगे, आपका सेल्फ असेसमेंट क्या कह रहा है? सर कंटेंट वाइज सर अभी कमी है काफ़ी। कहाँ कमी? एक्चुअली सर अभी सिविल सर्विस का मेंस था मेरा, तो अभी टाइम नहीं मिल पाया था। तो सर कहाँ डोमेन, ठीक है, कारण पे नहीं है, कौन कौन से डोमेन आइडेंटिफाई किए जहाँ आपको लगता है कि अगले 10 दिन आपके पास, 10-12 दिन? यस सर, बिहार स्पेसिफिक सर कुछ फैक्ट्स है सर, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर वगैरह सर, वो मैं कर लूँगा सर, वो एक बार देखना है, बिकॉज सर मैंने पहले भी दिया था बीपीएससी का इंटरव्यू। ठीक है, तो सर वो प्रिपेयर्ड है थोड़ा, बस मिनिस्ट्री लेवल पे भी देख लीजिएगा। यस सर, ओके सर, ठीक है। और एंड सर करंट अफेयर्स से भी थोड़ा और करने की ज़रूरत है। एंड सर ग्रेजुएशन का सर, बिकॉज काफ़ी टाइम हो गया पढ़े हुए, तो सर उसमें थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, 10-12 मिनट का इंटरव्यू होने वाला है, चूँकि ज़्यादा टाइम वो देंगे नहीं। यस सर। तो किसी भी डोमेन में बहुत देर नहीं रुकने वाले। यस सर। वो आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में गए, 2-4 सवाल पूछेंगे, पावर इंस्टॉल पावर कैपेसिटी क्या है, कौन कौन सी कंपनियां वहाँ मार्केटिंग में, डिस्कॉम्स कौन कौन सी हैं, वो सब थोड़ा देख लीजिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ पावर के स्ट्रक्चर भी देख लीजिएगा। और लेकिन कुल मिला के आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, मतलब ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ पर्सनालिटी एट्रीब्यूट्स आपकी एंट्री ठीक है, बैठने की भंगिमा ठीक है, जो एटिकेट्स होते हैं, ग्रीट करना, बैठने के बाद थैंक्स कहना, वो सब अच्छा है। फेशियल एक्सप्रेशन भी ठीक है, पॉजिटिव माइंडेड है, लिसनिंग ठीक है, रिसेप्शन मतलब यू आर गैदरिंग द क्वेश्चंस वेल एंड फॉर्मुलेटिंग योर आंसर। सिर्फ थोड़ा सा ऐड यही है कि समटाइम्स द एंटायर एक्सरसाइज अपीयर्स टू बी लिटिल लेड बैक और सबड्यूड, मतलब अननेसेसरी लग रहा है कि आप डरे हुए हैं खामखा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो यू मे बी मोर फोर्थ कमिंग, अ लिटिल असर्टिव, थोड़ा सा वॉल्यूम भी बढ़ा सकते हैं ताकि लगे कि हाँ भाई कॉन्फिडेंस, थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस डिस्प्ले भी करना जरूरी है। रिमेनिंग पोलाइट, मतलब एरोगेंस नहीं दिखाना है, लेकिन थोड़ा सा आप और असर्टिव हो सकते हैं। कम्युनिकेशन फ्लो अच्छा है। और करंट देख लीजिएगा, ये सब नगोर्नो काराबाख वगैरह तो इतनी चर्चा में आ रहा है, पेपर रोज पढ़ के, अभी 10-15 दिन रोज 2-3 अखबार पढ़िए, और एक पेपर अगर पटना का एडिशन कोई मिल जाए तो इलेक्ट्रॉनिक वाला तो मिल ही जाएगा। ये सर हिंदुस्तान में पढ़ रहा हूँ सर। हाँ, तो वो पढ़ते रहिएगा तो थोड़ा सा एफिलिएशन रहेगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, और चूँकि एडमिनिस्ट्रेशन है तो आपने सीएम वाला सवाल अच्छा बताया, आंसर अच्छा बताया। एनआईटी एक्ट 2007 में बना था, ये पता नहीं क्यों आपको नहीं, 50s में तो आरईसी बने थे। यस सर, लेकिन अच्छा ओके सर, मैं कंफ्यूज कर गया था फिर शायद, क्योंकि 1950s में शायद आरईसी बने होंगे सर। आरईसी बने थे, कन्वर्जन इधर हुआ है। खैर, तो ये सब अगर लगे कि किसी सवाल में आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो इंसिस्ट मत करिए। जैसे अगर मैंने दोबारा पूछा या तिबारा पूछा, जब भी वहाँ मेंबर किसी फैक्ट को आपसे कंफर्मेशन मांगने लगे तो आप, और अगर आप श्योर नहीं हैं तो आप थोड़ा एकोमोडेटिव हो जाइए कि मे बी सर मुझे देखना पड़ सकता है, आई विल रीड इट अबाउट। लेकिन वो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कई बार देखना चाहते हैं, तो अगर लगता है कि नहीं मैं फैक्ट पे मैं श्योर हूँ कि ये इसमें कोई डाउट नहीं, तो फर्म रहना भी ज़रूरी है। अब वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि कहाँ फर्म रहना ज़रूरी है, कहाँ थोड़ा एकोमोडेटिव होना ज़रूरी है, लेकिन थोड़ा सा डेमोक्रेटिक रहने की ज़रूरत है। ठीक है, तो अच्छा लग रहा है। और मणिपुर वाले में भी स्टैंड ठीक है कि भाई लॉ एंड ऑर्डर फेलियर एक्सेप्ट करना और कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनियर फेलियर में क्वालिटेटिव डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस ही मैं समझने की कोशिश कर रहा था, इसलिए वो सवाल फॉर्मुलेट किया था। आपने अच्छा उसको समझा कि हाँ लॉ एंड ऑर्डर फेलियर तो है, मानना पड़ेगा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर अभी डिक्लेयर करना ठीक नहीं है। दैट इज डिपेंड्स अपॉन द असेसमेंट ऑफ गवर्नर एंड द प्रेसिडेंट। उसको सुप्रीम कोर्ट भी क्वेश्चन नहीं कर सकता है। बहरहाल, तो वो सब आंसर आपके अच्छे थे, और तो कुल मिला के हम लोग इनकरेज फील कर रहे हैं आपके कैंडिडेचर को लेकर। मेंस में अगर अच्छे नंबर होंगे तो आपका सिलेक्शन इंटरव्यू की वजह से रुकने वाला नहीं है, इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स आएंगे आपके।
Yes. ठीक है, कोई डाउट हो या क्वेश्चन पूछिए. No, sir. Doubt. ऑल द बेस्ट. Thank you, sir. Thank you. Thank you.